बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ह्यूमन बॉडी में ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिसे सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहा जाता है, मटेरियल्स की ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। ये ऑक्सीजन को बॉडी के हर सेल तक पहुंचाता है। बॉडी के हर सेल से कार्बन डाइऑक्साइड लेके उसे बॉडी से बाहर एक्सक्रीट करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू बनने वाले न्यूट्रिएंट्स को हर सेल तक पहुंचाता है और ये सब काम सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड के थ्रू करता है। ये तमाम मटेरियल ब्लड में शामिल होकर बॉडी के हर सेल तक पहुंच जाते हैं। सो इट्स अ क्वालिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड इट मस्ट बी द क्वालिटी ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम कि उसे बॉडी के हर सेल तक एक्सेस होनी चाहिए। अगर बॉडी का कोई एक सेल भी इन मटेरियल से तक एक्सेस ना कर सके तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम अपना पर्पस पूरी तरह से फुलफिल नहीं करता। ह्यूमन बॉडी में ट्रांसपोर्ट सिस्टम में कुछ मेजर ऑर्गन्स हैं जो ये सब काम अंजाम देते हैं। सबसे पहले तो हार्ट है। इट इज़ अवर हार्ट विच इज़ प्रेजेंट इन द चेस्ट कैविटी। Heart is an organ that pumps the blood around the body. It continuously contracts and relaxes, and the contraction and relax movement of heart force and pressurize the blood to move throughout the body. Besides heart, there are blood vessels. Blood vessels are actually a network of tubes to carry blood around the body. It's spread throughout the body, as you can see here. Blue vessels and red vessels. Blue vessels, red vessels are the names due to their particular functions and characteristics. The vessels that you are seen in red colors are called arteries. They carry oxygenated blood. The vessels that you are seeing in blue color are called veins. They carry deoxygenated blood throughout the body, and there are capillaries between arteries and veins. You can say these are the junction between arteries and veins that interchange the materials carrying or the blood. Besides these two major organs, there are many allied organs that help out the circulatory system to transport the blood and materials effectively. One of the major organ is facilitated organ is pair of lungs. Lungs provide oxygen to the blood so that all the cells in the body may get oxygenated blood. The other allied organs are kidneys. Kidneys purify the blood by extracting out the waste material from the blood. As all the organs transfer their waste material into the blood and the kidney, it is the responsibility of kidney to wash and to clean these waste materials out of the blood and to make a blood healthy for the body. So what a heart actually is? It's a muscular organ, means there is no bone. Present inside the left side of chest cavity above the diaphragm. It is the chest cavity. In chest cavity there are lungs, a pair of lungs. The heart is present at the left side. In the chest cavity, and below the heart there is a diaphragm. You all know what a diaphragm is. It is a muscular structure that supports in breathing. The size of heart is just of the size of a clenched human fist. अगर आप अपनी मुट्ठी बंद कर लें तो उसका जो साइज होगा वो आपके हार्ट का साइज होगा। अब हार्ट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स।
What are cardiac muscles? Heart is made up of cardiac muscles. Here you can see cardiac muscle. These are cardiac muscle fibers. These are longitudinal with a solid nucleus inside them. It is one muscle fiber, it is other second, it's third, fourth muscle fibers. Our heart is enclosed in a very injury-proof system inside a layer which is called pericardium. Pericardium contains fluid that cushion the heart from external injuries. Now comes to the internal structure of heart. Heart is divided basically into four major chambers. The first chamber is right atrium and the second one is left atrium. These are the upper chambers which are also called receiving chambers. They receive the blood from the body and from the lungs. Right atrium is connected with two large veins, superior vena cava and inferior vena cava. These are the largest veins in body. These provide blood collecting from the body organs to the heart. Here deoxygenated blood is provided here. डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब ये है कि वो ब्लड जिसमें से ऑक्सीजन रिमूव हो गई है, ऑक्सीजन सेल्स ने यूटिलाइज कर ली है, यानी इस सेल्स में इस वाले ब्लड में जो ब्लू कलर में होगा उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगी. डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी से इंफीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा के थ्रू राइट एट्रियम में फॉल करता है. इसी तरह लेफ्ट एट्रियम इज कनेक्टेड विद लंग्स और लंग्स में ये पल्मोनरी वेन्स के थ्रू, दीज आर कॉल्ड पल्मोनरी वेन्स, के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है. यहाँ पे पल्मोनरी वेन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करेंगी. This is the first chamber, second chamber. The third chamber is right atrium is right ventricle, as you can see here, and the fourth one is left ventricle. These are the pumping chambers. Both are the pumping chambers. Right ventricle receive blood from right atrium and left ventricle receive blood from left ventricle and the aorta. Atriums are also called, both atriums are called auricles as well. It is the plural form. The other difference between the two is atrium chambers, yani auricles, are smaller while ventricle chambers are larger. Ventricle chambers are strongest chambers. They are more strong. Than auricles. इनके स्मॉल होने की वजह से और लेस स्ट्रॉन्ग होने की वजह यह है कि इनकी वॉल्स थिक होती हैं, जबकि आप देख सकते हैं कि वेंट्रिकल्स की वॉल थिक है. वेंट्रिकल्स थिक वॉल होने की वजह से स्ट्रॉन्ग चैम्बर्स हैं, क्योंकि इन्होंने ब्लड को पंप करना है. पंपिंग के लिए ज़्यादा फोर्स चाहिए, जबकि रिसीविंग के लिए रिलेटिवली लेस फोर्स रिक्वायर्ड है. और एज यू नो ऑरिकल्स आर रिसीविंग चैम्बर्स. जो राइट वेंट्रिकल है इसने ये चूँकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी किए होता है, सो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग में पुश करता है, लंग्स की तरफ सेंड करता है, पंप करता है, ताकि उसमें ऑक्सीजन आ जाए. और जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो ब्लड को एओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में पंप किया करता है, ताकि पूरी बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल सके.
चूंकि लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग से आता है, इसलिए लेफ्ट वेंट्रिकल्स इस ब्लड को एओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में ट्रांसफर कर देते हैं। ये तो थे हार्ट के चैम्बर्स। अब लेफ्ट वेंट्रिकल जिस आर्टरी के थ्रू बॉडी में ब्लड सप्लाई करता है वो लार्जेस्ट आर्टरी है हमारी बॉडी की और उसे एओर्टा कहा जाता है। दिस इज द एओर्टा आर्टरी विच इज कनेक्टेड to all the organs in the body, and its purpose is, its function is to provide oxygenated blood to all the cells in the body. It is connected with the network of arteries as well. अब हार्ट के चैम्बर्स तो हमने देख लिए, लेकिन ये चैम्बर्स एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्टेड हैं? तो हार्ट के ये चैम्बर्स चूंकि 4 चैम्बर्स हैं, तो there are 4 valves which connect one chamber to another as well as prevent the backflow of blood. यानी ये जो वेल्व्स हैं हार्ट में प्रेजेंट, ये एक डोर की तरह काम करते हैं, वन वे डोर की तरह, जिसमें से ट्रैफिक आ तो सकती है, जिसमें से ब्लड रिसीव तो हो सकता है, लेकिन वो उसी रास्ते से वापस नहीं जा सकता। ये 4 वेल्व्स, ये जैसे एक वेल्व ये है, ये पल्मोनरी वेल्व है, मैरिटल वेल्व, एओर्टिक वेल्व, 1, 2, 3 and the 4. These are the 4 valves that act as a one-way door. यानी ये यूनिडायरेक्शनल फ्लो को फेवर करते हैं। यहाँ पे आप वेल्व ज्यादा क्लियरली देख सकते हैं। ये फर्स्ट वेल्व है जिसे ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं। दिस वन विच कनेक्ट द राइट एट्रियम टू राइट वेंट्रिकल। राइट एट्रियम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसफर करता है राइट वेंट्रिकल को। राइट वेंट्रिकल से ये ब्लड ट्रांसफर कर दिया जाता है लंग्स में फॉर ऑक्सीजनेशन। टू लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन। सो ये आपका राइट वेंट्रिकल है, ट्राइकस्पिड वेल्व है ये, और ये वेल्व आपका पल्मोनरी वेल्व है। क्योंकि इसने लंग्स को ब्लड ट्रांसफर करना है फॉर ऑक्सीजनेशन, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पल्मोनरी वेल्व। थर्ड वेल्व, दिस वन इज द एओर्टिक, इज द मैरिटल वेल्व, मिट्रल वेल्व सॉरी। अब मिट्रल वेल्व क्या है? मिट्रल वेल्व कनेक्ट करता है लेफ्ट एट्रियम को लेफ्ट वेंट्रिकल से। लेफ्ट एट्रियम इज द रिसीविंग चैम्बर ऑफ ब्लड from the lungs, coming from the lungs. The fourth valve is aortic valve, this one. लेफ्ट वेंट्रिकल में आने के बाद जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड है पूरी बॉडी में सप्लाई कर दिया जाता है एओर्टा के थ्रू। तो वो वेल्व जो लेफ्ट वेंट्रिकल को एओर्टा से कनेक्ट करता है उसे एओर्टिक वेल्व कहा जाता है। दिस वन इज द एओर्टिक वेल्व जो कि एओर्टा के लेफ्ट वेंट्रिकल के जंक्शन पे प्रेजेंट है। सो ये वो 4 वेल्व्स हैं जो ब्लड की यूनिडायरेक्शनल फ्लो को फेवर करते हैं और उनका बैक फ्लो प्रिवेंट करता है। यानी लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड फ्लो राइट एट्रियम में नहीं जा सकता, जबकि राइट एट्रियम में से राइट वेंट्रिकल में आ सकता है। इसी तरह एओर्टा से ब्लड वापस लेफ्ट वेंट्रिकल में नहीं आ सकता, जबकि ये सिर्फ लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा की तरफ मूव करेगा। इसी तरह ये जो मिट्रल वेल्व है ये लंग्स से तो ब्लड को अलाउ करेगा, लेकिन एट्रियम में आने के बाद ब्लड को वापस लंग्स में जाने से रोकता है, वापस लंग्स में नहीं जाने देता। ये जो इंफीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा है ये लार्जेस्ट वेन्स हैं जो कि बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करती हैं। थैंक यू वेरी मच।